Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to continue the chapter A Short Monsoon Diary of Standard 8, chapter number 8. So far in this chapter, we have read till 3rd August diary. In two videos of this chapter, we have read how the writer saw, when I mean, rain stops, how the clouds begin to break, and then the sun strikes the hill on his left. He could also see a woman was chopping up sticks, and he could hear the tinkle of the cowbells. He could also see, the oak tree. A crow was shaking the raindrops from his feathers. So these all things he saw there, and he was just, like calling these all things like as a dark sweet secret from the depths of the ravine from the valley. So now we'll continue from here, from August 12 we'll continue, and we'll go through the line by line explanation. So let's begin. Endless rain and a permanent mist. We haven't seen the sun for 8 or 9 days. Everything damp and soggy. Nowhere to go. Pace the room, look out of the window at a few bobbing umbrellas. At least it is not cold. Rain. The hillside are lush and late monsoon flowers begin to appear. Wild balism, dahlias, begonias, and ground orchids. Now let me explain. First of all, we'll go through the word meaning of this para. Hold on just 1 second. So first is bobbing. Bobbing means make a sudden move so as to appear or disappear. आप एक ऐसा सडन मूव करते हैं जिसमें दिखते हैं या फिर गायब हो जाते हैं. सो बॉबिंग अम्ब्रेला लाइक यू कैन सी. एंड अनदर वन इज लश. लश मीन्स, hold on just 1 second, lush means that is color of vegetation, especially the grass. यहाँ पे आपका लश है, तो इसका मतलब होता है जो वेजिटेशन जो होते हैं, घास पतवार जो होते हैं, उसकी जो हरियाली होती है, दैट इज कॉल्ड लश. नाउ लेट मी एक्सप्लेन. So in this para, by August 12, the hills had been experiencing continuous rain and permanent mist. They had not seen the light of the sun for about a good stretch of 8 or 9 days. अगस्त 12 तारीख तक जो है पूरा हिल जो था बिल्कुल कंटिन्यूसली रेन और परमानेंट मिस्ट से ढका हुआ था, और उन्होंने करीब 8 या 9 दिन तक सन को देखा नहीं था. एवरीथिंग इन द सराउंडिंग वॉज स्लाइटली वेट एंड मॉइस्टेंड. जितने भी वहाँ पे आसपास में चीज़ें थी वो भीगी हुई थी और मॉइस्चर थी. उसके अलावा वन कुड नॉट गो एनीवेयर. कोई कहीं पे जा नहीं सकता था. द ओनली ऑप्शन वॉज टू मूव टू एंड फ्रो इन द रूम एंड लुक आउट ऑफ द विंडोज एट अ फ्यू अम्ब्रेलाज मूविंग सडनली. जैसा कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जब हमारे यहाँ आ सिटी कंटिन्यूसली रेन हैपन्स, तो हम लोग कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं और अपने ही रूम में इधर से उधर घूमते रहते हैं. और बहुत ज़्यादा अगर कुछ करेंगे तो दैट विल सी लुक आउट ऑफ द विंडोज़. हम लोग खिड़की के बाहर देखते हैं, और जब हम बाहर देखते हैं तो पाते हैं कि कुछ लोग जो है छाता लेकर के आ रहे हैं, जा रहे हैं. सो दैट इज़ अबाउट द राइटर इज़ टॉकिंग अबाउट. उसी के बारे में राइटर बात कर रहा है. नाउ द ऑथर इज़ प्लीज दैट इट वॉज नॉट कोल्ड रेन. ऑथर बोलता है कि अब जो है उतनी ठंडी बारिश नहीं हो रही थी. द वेजिटेशन कुड बी सीन ग्रोइंग luxuriantly and abundantly on the hillsides as the last monsoon flower began to blossom. A few flowers that began to appear. I mean, जो राइटर हैं इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि अब जो है चूँकि बारिश उतना तेज़ नहीं हो रहा, बारिश थोड़ा थम गया है, तो जो हरियाली है उस सराउंडिंग में वो काफ़ी खूबसूरत देखने में लग रहा है. और वहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में जो है हिल साइड्स के ऊपर छोटे छोटे फ्लावर्स जो है खिल रहे हैं.
A few flowers that began appear are wild blossom, और जो कुछ flowers वहाँ पे खिले थे उनका नाम वो बता रहे हैं. That was wild blossom, dahlias and bogenias and ground orchids. These are the name of, ये जो है नाम है आपका फ्लावर्स का जो हिल साइड में वहाँ पे देखने को मिल रहा था. यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर ऑल्सो. सो नाउ विल मूव टू नेक्स्ट डे डायरी, that is of August 31st. It is the last day of August and the lush monsoon growth has reached its peak. The seeds of the cobra lily are turning red, signifying that the rains are coming to an end. In a few days, the ferns will start turning yellow, but right now they are still firm, green and upright. Ground orchids, mauve lady's slipper, and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Landar. Wild dahlias, red, yellow, and the magenta rear their heads from the rocky crevices where they have taken hold. Snakes and rodents flooded out of their holes and burrows take shelter in roofs, attics, and godowns. A shrew, weak of eyesight, blunders about the rooms, much to the amusement of the children. Don't kill it, admonishes their grandmother. Chuchundars are lucky. They bring money. And sure enough, I receive a check in the mail. Not a very large one, but welcome all the same. So now let me explain. I will go through the, explanation and word meaning also. So here you can see land R, that means इसका मतलब होता है आपका small cantonment town touching मसूरी. एक छोटा सा कंटोनमेंट टाउन है जो मसूरी को लगता है, मसूरी के सीमा के पास में है. क्रिवाइसेस इसका मतलब होता है आपका नैरो ओपनिंग और क्रैक्स, जो दरारें होती है पत्थरों के बीच में, उसको हम लोग क्रिवाइसेस बोलते हैं. और वर्ड मीनिंग इसमें बरोज यू ऑल नो व्हाट इज़ कॉल्ड बरोज. आप लोगों ने पढ़ा होगा बरोज के बारे में. You can answer it in the comment section box. A hole or tunnel dug by a small animal, right? Now attics क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे. Attics is called a space or room inside a partly inside the roof of building. श्रीव का मतलब होता है that means श्रीव means होता है small insectivorous mammal resembling a mouse जैसा दिखने में होता है, with a long pointed snout and टाइनी आइज, छोटा छोटा उसका आँख होता है. ब्लंडर्स मतलब एक्ट क्लम्सली, जो आप कोई बहुत बड़ा मिस्टेक करते हो, दैट इज़ कॉल्ड ब्लंडर. एंड एडमोनिसेस का मतलब होता है वार्न करना. एडमोनिसेस मीन्स वार्न. ओके, और इसमें कुछ ऐसा वर्ड मीनिंग है, लेट अस चेक इट आउट. देन छुछुंदर्स, हिंदी वर्ड फॉर श्रीव को हम लोग हिंदी में छुछुंदर बोलते हैं, राइट. तो ये आप वर्ड मीनिंग हो गया. नाउ लेट मी एक्सप्लेन इट. सो द राइटर सेज, होल्ड ऑन जस्ट 1 सेकेंड. द राइटर सेज August 31st, the last day of the month, also marked the nearing end of monsoon. 31st अगस्त को जो है हम लोग मानसून का अंतिम दिन मान के चलते हैं. द मानसून वेजिटेशन ग्रोथ had reached its peak by the time and the color changing of the seeds of the cobra lily red hinted at the end of the rainy season 2. और साथ ही साथ जो मानसून वेजिटेशन का जो ग्रोथ है वो पीक पे पहुंच चुका है उस समय तक, क्योंकि उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है. सीड का जो कोबरा लिली का जो सीड का कलर वो चेंज हो रहा है, रेड हो रहा है. और वो एक हिंट होता है, वो एक आपका हिंट दे रहा है कि अब जो है रेनी सीजन एंड होने वाला है. नाउ इन नेक्स्ट पैरा द राइटर सेज कि एज द नेक्स्ट फ्यू डेज पासिस द फ्लावरलेस प्लांट्स
और द फर्न्स विल बिगिन टर्निंग येलो, जो जैसे ही कुछ और दिन बीतेगा तो फ्लावरलेस जो पौधे हैं जिसमें कोई फ्लावर लगा हुआ नहीं है, या फिर जो फर्न्स जो है वो उसका जल्द ही येलो होने वाला है, बिकॉज देयर प्रेजेंट फ्रेश ग्रीन कलर एज दे स्टैंड फर्म अपराइट, क्योंकि वहाँ पे जो पहले से हरियाली थी वो अब जस्ट बिकॉज रेन हैज़ स्टॉप्ड, बारिश अब रुक चुकी है तो उसको उतना ग्रोथ अब नहीं मिलने वाला, और दैट्स वाई रिडक्शन इन देयर लाइक मिनरल्स एंड जो वाटर की कमी होगी तो उसका जो कलर है वो चेंज होने वाला है। बट अभी भी वो स्टैंड फॉर्म खड़ा हुआ है, बाद में धीरे धीरे वो करके कमज़ोर होकर के वो गिर जाएगा। राइटर ऑल्सो मेंशंस how the ground orchids, white butterfly orchids, and the mauve ladies slipper made the grassy slope land look fashionable. राइटर बताते हैं कि कैसे वहाँ पे जो वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड्स है या फिर मॉव लेडीज स्लीपर जो फूल है, ये सारे फ्लावर्स है, वो ग्रासी स्लोप को कैसे फैशनेबल देखने में लगा रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने कुछ ज़्यादा फैशनेबल, यू कैन कंपेयर इट विद द आई मीन ड्रेसेस विच यू बियर टू लुक हैंडसम, टू लुक ब्यूटीफुल। तो उसी तरीके से वो जो ग्रासी स्लोप्स है वो इन फ्लावर्स की वजह से काफ़ी फैशनेबल देखने में लग रहा है। फर्दर मोर द वाइल्ड डलियाज एंड रेड येलो एंड मैजेंटा टर्न देयर हेड बैक टुवर्ड्स द नैरो ओपनिंग्स, वो जो दरारों के बीच, पत्थरों के बीच, पहाड़ों के बीच जो दरारें होती है उनके बीच से और भी जो फूल निकल रहे हैं, वाइल्ड डलियाज है, रेड येलो एंड मैजेंटा, ये सारे जो है उन पहाड़ों के दरारों के बीच से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव टेकन देयर होल्ड देयर, उन्होंने वहाँ पे अपना घर बना लिया है। नाउ द मीन राइटर टॉक्स अबाउट स्नेक्स एंड रॉडेंट्स। राइटर जो है स्नेक एंड रॉडेंट्स के बारे में भी बात करता है। द स्नेक एंड रॉडेंट्स दैट हैव कम आउट ऑफ देयर होल्स एंड बरोज इन ह्यूज नंबर्स, बहुत ज़्यादा संख्या में जो है जितने भी स्नेक्स और रॉडेंट्स हैं वो अपने होल्स से बाहर आ चुके हैं, और उन्होंने अब अपना घर जो है रूफ्स के ऊपर बना लिया है, एटिक्स के ऊपर बना लिया है, और कहीं कहीं पे गोडाउन्स है वहाँ पे भी उन्होंने उसको अपना घर बना लिया। बरोज में अभी वो लोग बरोज से बाहर निकल चुके हैं। अ स्मॉल इंसेक्टिवोरस मैमल रिजेंबलिंग माउस, एक छोटा सा इंसेक्टिवोरस मैमल है जो कि बिल्कुल माउस से मिलता जुलता है। उसका नाम श्रीव है, जिसको कि हम लोग हिंदी में छुछुंदर भी बोलते हैं। वो भी विथ क्वाइट अ वीक आई साइट, उसका जो आई साइट होता है जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि वो कमज़ोर होता है। मूव्ड अबाउट क्लम्सली इन द रूम, वो भी धीरे धीरे करके वो रूम के अंदर में एंटर कर रहा है। एंड इट एक्टेड एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द चिल्ड्रन, और जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो उसके साथ में खेल रहे हैं, उसके साथ में लाइक थोड़ा शैतानी कर रहे हैं। एंड जब वो शैतानी कर रहे हैं तो उनकी जो ग्रैंड मदर है उनको वार्न करती है कि इसको मारना नहीं, क्योंकि ये छुछुंदर है, और ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि इनका जो है आना घर में वो काफ़ी प्रॉस्पेरिटी को लेके आता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि छुछुंदर जब घर में अगर आता है तो आपके घर में समृद्धि आती है, प्रॉस्पेरिटी आती है। और ऑथर जो है इसके बारे में थोड़ा जोक भी करते हैं। द ऑथर जोक्स अबाउट इट एंड सेज दैट ही श्योरली रिसीव्ड अ चेक, और उन्होंने बोला कि हाँ हाँ मुझे एक मेल से चेक मिला है, बहुत ज़्यादा पैसा तो नहीं मिला बट थोड़ा बहुत पैसा उनको जो है मिला है। सो ही इज जस्ट सपोर्टिंग द स्टेटमेंट ऑफ ग्रैंड मदर। वेट, होल्ड ऑन 1 second guys. Now we'll move to another para, that is October 3rd. Now we have gone straight from monsoon into winter rain, snow at higher altitudes. After an evening hailstorm, the sky and hills are suffused with a beautiful golden light. Now here suffused means, suffused का मतलब होता है आपका gradually spread through or over, धीरे धीरे आप फैल जाना, that is called suffused, right? Now let me explain this para also. The month of October took the mountains straight into winter rain as it marked the end of extended monsoon season. जो अक्टूबर मंथ होता है वो माउंटेन्स के ऊपर जो है थोड़ा ठंड वाली जो बारिश होती है, विंटर का जो रेन होता है, वो उस तरीके से वहाँ पे मानसून को थोड़ा सा बढ़ा दे रहा है उस एरिए में।
और हायर ऑल्टीट्यूड होने के कारण जो है वहाँ पे ठंड होने के कारण जो है वो बर्फ़ भी स्नो टाइप का वहाँ पे थोड़ा जमा हो गया है, बर्फ़ जमने लगा है. एंड ऑन द 3rd October द स्काई एंड हिल्स वर बाथिंग इन अ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट. तो राइटर ऐसा मानते हैं, ऐसा देखते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि अब जो है वहाँ पे जो स्काई और हिल्स हैं वो ऐसा दिखने में लग रहा था जैसे कि वो बात कर रहा है किस चीज़ से, विथ ब्यूटीफुल गोल्डन लाइट, क्योंकि वहाँ पे हेल स्टॉर्म जो है इवनिंग में हो चुका था. इसके कारण से काफ़ी खूबसूरती वहाँ पे आ चुकी है. So, dear student, we will now read the remained part of this chapter. Into next video, we will finish the whole story, and we will do the question answer of the chapter in coming videos. Now, I would like to take leave from this chapter, and we'll meet in next part of the video. So, till then, bye, take care, and have a nice day. Thank you, everyone.